Hello students, we are on class 9th maths linear equation in two variable exercise 4.3 question number 7. Question number 7 is इससे जो previous questions थे up to 6 question तक हम previous class में complete कर चुके हैं. आज इससे next करने जा रहे हैं. Question number 7 में हमें given है कि यामिनी and फातिमा, two friends are there, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same. इसका मतलब ये है हमारे पास कि दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड दे आर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स X rupees, whereas Fatima contributes Y rupees. The sum of their contribution as given as 100 rupees. So according to question, X plus Y is equal to 100 is a linear equation. Now to solve this linear equation and find the draw the graph for the same. So to draw the graph, as we know, we solve this equation, and to solve this equation first of all we will take a find the solutions. और solutions find करने के लिए हम एक वेरिएबल को शिफ्ट कर देते हैं. If I shift one variable as y, it converts as x is equal to 100 minus y. Put the value of y. I put the value of y as 30. The value of x is 100 minus 30, 70. If I put x is equal to 40, y is equal to 40, we will get 100 minus 40, 60. If I put y is equal to 50, x is equal to 50. हम इसमें 1 2 3 इसलिए नहीं लेके चल रहे क्योंकि 100 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है. अगर उसको ग्राफ पर डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो उसके नियर अबाउट वैल्यूज़ ही हम y की कंसिडर कर सकते हैं. अगर y की 10 20 30 इस तरह से लेके चलते हैं तो कुछ हमारे पास रिजल्ट है वो 50 60 70 80 इस तरह से आ जाएंगे. बट अगर हम इसमें 1 2 3 लेके चलेंगे तो x की वैल्यूज़ 99 98 उसको ग्राफ पर शो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ग्राफ के लिए हम इसको सॉल्यूशंस को कुछ इस फॉर्म में लेके चल रहे हैं. अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा. x इज इक्वल टू 70 व्हेन y इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 60 व्हेन y इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 50 इफ y इज इक्वल टू 50. इन सॉल्यूशंस के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अगेन वही सेम पार्ट हमारे पास, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास ऑलवेज वाई एक्सिस को एंड वर्टिकल लाइन जो होती है वो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस को एंड वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस को शो करती है. वेयर दे इंटरसेक्टेड. स्केल इज द कंपल्सरी पार्ट फॉर दिस. अब स्केल के अंदर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 ले लेंगे. अगर 10 लेके चलेंगे इट्स इजी टू ड्रॉ दिस ग्राफ नाउ. अब 10 लेके चलेंगे, कंसिडर हो जाएगा हमारे पास दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20. ग्राफ पेपर पर ये वर्क करना है आपने, और ग्राफ पेपर पर जब वर्क करेंगे तो ये आपके पास जो कैलकुलेशंस हैं या टेबल जो 1 सेंटीमीटर है वो ऑलरेडी ड्रॉन होगा. उस पर जो डार्क ग्रीन लाइन होगी दैट शोज द 1 सेंटीमीटर
सो वहाँ पे हमें -10, -20, -30, -40, -10, -20, -30, -40 and so on. Now according to a table, x is equal to 70, y is equal to 30, x is equal to 70, y is equal to 30. It will be on this position 30, 70, 30. X is equal to 60 while y is equal to 40, 60 and 40, 60, 40. X is equal to 50, y is equal to 50, x is equal to 50, y is equal to 50, 50, 50. Join these lines, you will get a straight line which express the contribution of Yamini and Fatima. सो इस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड ग्राफ ड्रॉ करना है. Question number 8. It's given that here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F means Fahrenheit is equal to 9/5 into C plus 32. C means Celsius. Draw the graph taking the Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. If the temperature in 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in degree Celsius? If temperature is 0 degree Celsius, then what is in degree Fahrenheit? And if it is 0 degree Fahrenheit, then what is it 0 degree Celsius? In degree Celsius हमें calculate करना है इसमें. And one more thing is given in this question. Is there temperature which is numerically the same in the both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. हमें ये सभी calculations करनी है. इसको complete करने के लिए solution में सबसे पहले हम इसको graphically show करने के लिए table बनाते हैं. अब टेबल बनाने के लिए जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, हमें c की वैल्यू पुट करनी है, f की वैल्यूज आएंगी क्योंकि वेरिएबल c एंड f है. c राइट हैंड साइड में है और f लेफ्ट हैंड साइड में है, तो c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, f की वैल्यूज आती रहेंगी. c की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो 5 की टेबल में सब्सटीट्यूट करेंगे. हम 5 की टेबल में इसलिए सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि अगर 5 की टेबल में सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये अपॉन में 5 फ्रैक्शन जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो f की वैल्यू एग्जैक्ट यानी कोई डेसिमल्स में ना आकर हमारे पास एक इंटीजर फॉर्म में कोई भी वैल्यू आ सकती है. अब इंटीजर फॉर्म में होगा तो उसको ग्राफिकली शो करना भी थोड़ा ईजी होगा. सो वी विल टेक c इन द फॉर्म ऑफ ए table of 5 or multiple of 5. So take c is equal to 5 first of all degree Celsius. Then f is equal to 9/5 into 5 plus 32. 5 to 5 cancel, it is 40 degree Fahrenheit. Second, c is equal to 10 degree Celsius. So f is equal to 9/5 into 10 plus 32. 5 to the 10, 18 plus 32, that is 50 degree Fahrenheit. If we took c is equal to 15 degree Celsius, then f is equal to 9/5 into 15 plus 32. 5 3 the 15, 27 plus 32, that is 59 degree Fahrenheit. Now using this data we draw the graph, and to draw the graph first of all we will make a table. On x-axis it's given that we have to take the Celsius, and on y-axis we will take the Fahrenheit. So सबसे पहले हम x-axis and y-axis जो हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग इसको टेबल को बना लेते हैं. c and f. c हमने 5 कंसिडर किया, f की वैल्यू 41, c 10 50, c 15, f की वैल्यू 59. graph, you know about the graph now, you can draw
और आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ नाउ। ग्राफ बनाने के लिए वही हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ग्राफ पर आपकी ये जो बाकी की कैलकुलेशंस हैं, लाइक ये जो भी हैं क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी ग्राफ जो बनेगा वो डायरेक्टली सॉल्व सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके बताऊंगा। आपके पास ग्राफ काफ़ी लेंथी होता है तो उस पर आराम से इसको प्लॉट करते हुए मैं बता देता हूं कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपका एग्जैक्ट आंसर इस ग्राफ से भी मिल जाएगा। सो 0 एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, हेयर वी हैव 5 की टेबल लेके चलेंगे, 5, 10, 15, 10 लेके चलें, दैट इज़ आल्सो नॉट ए प्रॉब्लम। अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, here we have -10, -20, -30, -40, here we have 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, -10, -20, -30, -40, -50, -60, x इज इक्वल टू 5, c इक्वल्स टू 5, इधर हमने डिग्री सेल्सियस लिया है, इधर हम डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स इन बिटवीन फिफ्थ लाइन, 0 एंड 10 के बिटवीन जो फिफ्थ लाइन होगी दैट शोज द 5, एंड y इज इक्वल टू 41, y इक्वल्स टू 41 मीन्स आफ्टर 40 कंसिडर वन लाइन, दिस पॉइंट विल शो एज 5,41. Second point, x is equal to 10, y is equal to 50. X is equal to 10, y is equal to 50. 10, 50. X is equal to 15, y is equal to 59. If x is equal to 15 and y is equal to 50, इसमें अब हम पुट करेंगे x is equal to 15, y is equal to x is equal to 15, y is equal to 59. X is equal to 15 means after 10, fifth line, and 59 means after 50, it's ninth line, or count that line 15, 59. If we join this line passes through like this, आपके पास एग्जैक्ट लाइन आएगी, मेरे पास इस तरह से थोड़ा सा मे बी वेरी कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका पार्ट बनेगा। अब उसने सबसे पहले पूछा है सेकंड थर्ड पार्ट में, जैसे इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, इस पर आप चेक कर लीजिए कि इसमें फ़ारेनहाइट पर कितने पर मिलेगा, ये इस तरफ मूव करते हुए आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ग्राफिकली, बट मैं इसको न्यूमेरिकली बता देता हूँ, आप ग्राफिकली इसको शो करके देख लेना। 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स यहाँ से 30 डिग्री वाली जो लाइन कट करती है वो वाई एक्स को किस पॉइंट पर मिलती है वो चेक करना है बस, दैट कन्वर्ट्स द डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। सेकंड पूछा इसने जैसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप 80 के बाद में 95 आएगा, इस 95 से इस ग्राफ को ज्वाइन करके देख लेना ये डिग्री सेल्सियस पे कितने को ज्वाइन करता है। देन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, इफ 0 डिग्री देन ये फ़ारेनहाइट पर अगर चेक करते हैं तो 32 पर ज्वाइन कर रही है, तो 32 डिग्री सेल्सियस होगा, और फिर उसने 0 डिग्री सेल्सियस हो तो वो सारी कैलकुलेशन इससे इजीली कर सकते हैं आप एक बार ट्राई करके देखना, ग्राफिकली आप सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ बनाते हुए। मैं इसको फिजिकली यानी न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं करवा देता हूँ। टू सॉल्व दीज पार्ट्स न्यूमेरिकली, सबसे पहले उसने पूछा है when x is equal to 30 degree, because c consider as a 30 degree, so x is equal to 30 degree Celsius, what will be the value of f? इसमें c की जगह पर f 30 पुट कर देते हैं, f is equal to 9/5 into 30 plus 32, 5 6 the 30, 9 6 the 54 plus 32, that is 86 degree Fahrenheit. So फर्स्ट का आंसर होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप भी जब 30 को इसको ज्वाइन करवाएंगे तो 86 पर ही ये ज्वाइन करेगा। सेकंड पार्ट,
if f is equal to 95 degree Fahrenheit, what will be the value of c? So to calculate the value of c, हम 95 पुट करेंगे f की जगह पर, 9/5 इंटू सी प्लस 32 प्लस में माइनस में 9/5 इंटू सी, 95 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 63 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, 9 7 द 63, 35 डिग्री. सो द आंसर इज 35 डिग्री सेल्सियस. थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास इफ सी इज इक्वल टू 0, if c is equal to 0, that means f is equal to 9/5 into 0 plus 32. if we solve 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, 0 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड इफ f is equal to, हमारे पास एक और पार्ट दिया हुआ है इसने, तो उसको मैं सॉल्व इस तरफ कर देता हूँ. इक्वेशन इज गिवन एज f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. अब इसमें हमें ये पूछा है कि इफ f इज इक्वल टू 0, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम इसका, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए f की जगह 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पुट कर देते हैं. 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, माइनस 32, क्योंकि प्लस 32 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 9/5 सी. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, माइनस 32 के मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 9 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे. 0 160 माइनस का 160/9, सी इज इक्वल टू माइनस 9 1 द 9, 7 70, 9 7 द 63, then remains 63, 7 97 the degree Celsius, approximately 17.7 और 17.78 we can consider. ये हमारे पास इसका हो जाएगा. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी टेम्परेचर ऑन दैट f and c आर इक्वल. लास्ट पार्ट है इसका. सो हमें एक पार्ट इसने और पूछ लिया कि क्या ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पर हमारे पास f एंड c दोनों इक्वल हो, यानी फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर इक्वल. सो हम क्या करते हैं कि f एंड c को इक्वल पुट कर देते हैं. लेट f इक्वल्स टू c इक्वल्स टू x. सो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 9/5 इंटू एक्स प्लस 32. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. 9/5 x इज इक्वल टू 32. टेक द 5 LCM, इट कन्वर्ट्स एज माइनस 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 32, और माइनस 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5, x इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5/4. 4 8 the x equals to minus 40 degree. That means at minus 40 degree the Fahrenheit and degree Celsius are always equal. So ये हमारे पास इसमें टॉपिक था, क्वेश्चन था, जिसको सॉल्व करना था हमें. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो 4.3 है वो कंप्लीट होती है. ये दो क्वेश्चंस हमारे रिमेंस रहे थे इसमें पार्ट में. फिफ्थ पार्ट था ये जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है. अगर बीच में कोई एक आधा पार्ट रह गया हो तो दैट यू कैन ट्राई एंड यू कैन सॉल्व दैट. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटेड है. नेक्स्ट टुमारो विल गो फॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x axis and y axis. Thank you for today and subscribe my channel if you didn't subscribe yet to get the new videos, and share to your friends so that they can also watch these videos and go through the syllabus. Thank you.